یہ کہانی ہے تیمور کی، ایک ایسے غلام لڑکے کی جس کو اس کا ہی باپ شہر کے بازار میں تھوڑے سکوں کے خاطر بیچ دیتا ہے۔ شہر کا نواب عبدل اسے خرید کر اپنے محل کا غلام بناتا ہے۔ جیسے جیسے تیمور بڑا ہوتا ہے، نواب کی بیٹی علینا اس پر ظلم ڈھاتی ہے، اسے پریشان کرتی ہے اور طرح طرح کے کام فرماتی ہے۔ کیا تیمور یہ ساری پریشانیاں سہ پائے گا؟ کیا وہ کبھی آزاد ہو پائے گا؟ یہ جاننے کے لیے پوری کہانی ضرور دیکھیے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں، جہاں پہاڑوں کے درمیان بسی ہوئی ایک پرانی مسجد کی اذان ہر صبح فجر کے وقت گونجتی اور شام کو مغرب کے لیے لوگوں کو جمع کرتی، وہاں احمد کا گھر تھا۔ یہ گاؤں عربیہ کے قریب ایک سنسان اور خشک علاقے میں واقع تھا، جہاں لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی اسلام کے احکام اور سنتوں کے مطابق گزارتے تھے۔ مسجد کے قریب ایک چھوٹا سا میدان تھا، جہاں بچے صبح صبح کھیلتے اور بڑے لوگ نماز کے بعد بیٹھ کر گاؤں کے مسئلوں پر گفتگو کرتے۔ احمد ایک مزدور تھا جو کھیتوں میں دن بھر محنت کرتا، گیہوں، جوار اور مکی کی فصلیں اگاتا، پانی کے چھوٹے سے جھیل سے سنچائی کرتا اور اپنے گھر کے لیے روزی کماتا۔ اس کا گھر سادہ اور مٹی کا بنا ہوا تھا، جس میں ایک چھوٹا سا آنگن تھا جہاں ایک نیم کا پیڑ کھڑا تھا جو دھوپ میں چھایا دیتا اور ہوا کو ٹھنڈا کرتا۔ گھر کے اندر ایک چھوٹی سی رسوئی تھی جہاں فاطمہ کھانا بناتی، روٹیاں سیکتی، اور ایک بڑا سا کمرہ جہاں 3 بچے سوتے، فیض، مریم اور تیمور۔ کمرے کی دیواروں پر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی تھی جو فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے نقشی کی تھی، جیسے اللہ اکبر اور سبحان اللہ۔ فاطمہ ایک نیک دل، صبر والی اور محبت بھری عورت تھی۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی، اپنے گھر کو سنبھلتی، کپڑے سلتی اور اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیتی۔ فیض گھر کا سب سے بڑا بیٹا 15 سال کا تھا، جو باپ کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتا، ہل چلاتا، بیج بوتا اور فصلوں کو پانی دیتا۔ عمر کا جسم محنت سے مضبوط ہو گیا تھا، اس کے ہاتھوں پر گہرے نشان تھے اور وہ اکثر تیمور کو سکھاتا، چھوٹے، زندگی محنت سے ملتی ہے، آرام سے نہیں۔ تیمور ماں کی گود میں بیٹھ کر سنتا، اس کی باتوں سے اس کا دل سکون پاتا اور وہ ماں کے دوپٹے سے کھیلتا۔ فیض تیمور سے پیار کرتا، لیکن اس کا مزاج تھوڑا سخت اور ذمہ دارانہ تھا۔ وہ صبح کھیت جاتے وقت تیمور سے کہتا، آج کھیتوں میں آ، پانی دینا سیکھ۔ مریم تیمور کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی، اس کے ساتھ نیم کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر کہانیاں سناتی، اسلام کے قصے بتاتی، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی۔ گھر میں صبح کا ناشتہ فاطمہ تیار کرتی، گرم روٹیاں، دال اور دودھ، اور نیم کے پیڑ کے نیچے سب بیٹھ کر کھاتے، ہنسی مذاق کرتے۔ احمد اکثر چپ رہتا، اپنے کام میں مشغول، لیکن جب بات کرتا تو اس کی آواز میں سختی اور پریشانی ہوتی۔ احمد کا دل تیمور کے لیے نفرت سے بھرا تھا۔ اس نے سوچا کہ گھر میں 3 بچے بہت ہیں، خرچہ بڑھ رہا ہے اور تیمور کے ہونے سے روزی میں کمی آتی ہے۔ وہ رات کو فاطمہ سے کہتا، فائز اور مریم سے گھر چل جاتا ہے، یہ چھوٹا لڑکا کیوں ہے، صرف کھاتا ہے، کھیلتا ہے، بوجھ بڑھاتا ہے۔ فاطمہ اسے سمجھاتی، احمد، اسلام میں ہر بچہ اللہ کی نعمت اور امانت ہے، تیمور ہمارا بیٹا ہے، اس پر رحم کرو، اس سے محبت کرو۔ لیکن احمد کا دل نہیں پگھلتا۔ وہ سوچتا، اگر تیمور کو شہر میں بیچ دوں تو کچھ سکے مل جائیں گے، گھر کا خرچہ چلے گا اور بوجھ کم ہوگا۔ اس نے اپنے دل میں یہ سازش رچی، فاطمہ اور بچوں سے چھپایا اور رات کو بستر پر لیٹ کر پلان بناتا۔ گاؤں کی زندگی سادی اور مذہبی تھی۔ ہر صبح مسجد سے اذان کی آواز آتی، لوگ نماز پڑھتے، پھر کھیتوں یا گھر کے کام پر لگ جاتے۔ فاطمہ گھر کے کام کرتی، بچوں کو اسلام کی تعلیم دیتی۔ ایک دن گاؤں کے مولوی صاحب نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی کہانی سنائی کی، کیسے وہ غلام تھے، ظلم سے لیکن ایمان پر قائم رہے
और अजान देने वाले बन गए। तैमूर ने सुनकर सोचा, मैं भी अल्लाह पर भरोसा रखूंगा, सब्र करूंगा। फैज ने भी सुनी और कहा, तैमूर, ऐसा ईमान चाहिए। मरियम ने मां से कहा, अम्मी, हम भी ऐसे बनेंगे। लेकिन अहमद का मन बदलता गया। वो रात को सोचता, शहर का बाजार दूर नहीं, वहां ताजिर बच्चों को खरीदते हैं, मैं तैमूर को ले जाऊंगा। एक सुबह फजर की नमाज के बाद अहमद ने फातिमा से कहा, मैं तैमूर को शहर ले जा रहा हूं, उसे बाजार दिखाने, नई चीजें देखने के लिए मेला घुमाने। फातिमा का दिल घबराया। उसने पूछा, सिर्फ तैमूर को क्यों? फैज और मरियम को भी ले चलो, वो भी देख लें। अहमद ने गुस्से से जवाब दिया, फैज को खेतों में काम है, फसलें पानी मांग रही हैं, मरियम घर संभले, खाना बनाए। मैं तैमूर को ले जा रहा हूं, वो छोटा है, उसे दुनिया देखनी चाहिए। फातिमा चुप रही, लेकिन उसकी आंखें नाम हो गईं। दिल में एक अजीब डर पैदा हुआ। उसने तैमूर को तैयार किया, उसके नए कपड़े पहनाए, एक छोटा सा झोला दिया जिसमें रोटी, पानी और एक छोटी सी किताब कुरान थी, और गले लगाकर कहा, बेटा, अपने बाप के साथ रहना, हमेशा नमाज पढ़ना, दुआ करना कि अल्लाह तुम्हें हिफाजत में रखे, और जल्दी वापस आना। तैमूर खुश था। उसने सोचा कि शहर में बड़े महल होंगे, जगमगती दुकानें, मेला में झूले और मिठाइयां होंगी। फैज ने उसे ठपकी दी, छोटे, शहर से एक खिलौना लाना और अच्छी तरह घूमना। मरियम ने उसे एक छोटा सा तस्बीह दिया, ये ले, इससे दुआ करना, अल्लाह को याद रखना। अहमद और तैमूर गांव से निकले। रास्ता लंबा और घुमावदार था, पहाड़ों के बीच से गुजारता जहां दरिया का पानी बहता था। पेड़ों की छाया थी और चिड़ियों की आवाजें गूंजती थीं। तैमूर ने रास्ते में सवाल किए, अब्बू, शहर में क्या क्या है? वहां मस्जिद कितनी बड़ी है? मेला में क्या खेल है? अहमद ने चिढ़कर कहा, चुप रहो, ज्यादा सवाल मत करो, बस चलते रहो। धूप तेज होने लगी। तैमूर के छोटे पैर दर्द करने लगे। उसने पानी मांगा, लेकिन अहमद ने कहा, थोड़ा और चल, शहर पहुंचकर पीना। शाम तक वो शहर पहुंच गए। शहर बहुत बड़ा और रौनक भरा था। लोगों की भीड़ थी, दुकानें जगमगाती थी, बड़े बड़े महल नजर आते, और दूर से एक बड़ी मस्जिद की मीनार दिखी, जिसकी अजान की आवाज गूंज रही थी। तैमूर की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, ये तो जन्नत जैसा है, कितना खूबसूरत। अहमद ने उसे एक दुकान के पास बिठाया। यहां रुक, मैं कुछ खरीद कर आता हूं, हिलना मत वरना खो जाओगे। तैमूर वहां बैठ गया। शहर की रौनक देखने लगा। लोगों को देखता, उनके रंग बिरंगे कपड़े, उनकी तेजी से चलने की रफ्तार और बाजार की महंगी चीजें। लेकिन अहमद बाजार के उस हिस्से में गया जहां गुलाम बेचते थे। वहां ताजिरों की भीड़ थी। लोग जवान और बच्चों को बेच रहे थे, जैसे कि वो कोई माल हो। उनके चेहरों पर लल्लच था। एक ताजिर ने अहमद से पूछा, ये लड़का बेचना है, कितने पैसे चाहिए? अहमद ने कहा, हाँ, ये मेरा बेटा है, लेकिन बोझ है, कुछ सिक्के दो और ले लो। ताजिर ने कुछ सिक्कों का टुकड़ा दिया और तैमूर को पकड़ लिया। तैमूर ने देखा तो वो चीखा, अब्बू, मुझे मत छोड़ो, अम्मी के पास ले चलो, ये क्या कर रहे हो? लेकिन अहमद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सिक्के को जेब में डाला और गहो की तरफ तेजी से चल दिया। उसके दिल में कोई पछतावा नहीं था। वो सोचता, अब घर का खर्चा चलेगा। अहमद रात के अंधेरे में गहो पहुंचा। फातिमा दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी। फैज और मरियम भी साथ थे। उनके चेहरों पर फिक्र थी। फातिमा ने पूछा, तैमूर कहां है? उसे क्यों नहीं लाए? क्या हुआ? अहमद ने आंसू बहाते हुए नाटक किया। अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, बाजार में भीड़ थी, मेला में वो हाथ छुड़ाकर भाग गया। मैंने हर जगह ढूंढा,
मस्जिद में, दुकानों में, लेकिन नहीं मिला। फातिमा जमीन पर गिर पड़ी। मेरा बेटा तैमूर! वो चीख कर रोई। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दिल टूट गया। फैज ने बाप को पकड़ा। अब्बू, आप साथ थे ना? कैसे खो गया? सच बताओ। मरियम भी रोई। तैमूर कहां चला गया? वो छोटा है, अकेला कैसे रहेगा? अहमद ने नाटक जारी रखा। मैं खुद परेशान हूं। पुलिस को बताया, लोगों से पूछा, लेकिन कोई फायदा नहीं। अल्लाह की मर्जी है। फातिमा ने अहमद का कॉलर पकड़ा। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा बेटा कहां है? तुमने ही कुछ किया है। सच बताओ, अल्लाह से डारो। अहमद चुप रहा, सिर्फ कहता, वो खो गया है, अब दुआ करो कि मिल जाए। फातिमा ने गाहों के मौलवी साहब को बताया। मौलवी साहब, मेरा बेटा खो गया। दिल नहीं मान रहा। अहमद झूठ बोल रहा है। मौलवी साहब ने कहा, फातिमा, अल्लाह पर तवक्कुल करो, दुआ करो, वो मिल जाएगा। कुरान में फरमाया है, ला तनक़ता रहमतुल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। फातिमा घर पर हर नमाज में दुआ मांगती, या अल्लाह, मेरे तैमूर को हिफाजत कर, उसे वापस ला दे। तू रहीम है, तू करीम है। फैज ने अगले दिन शहर जाकर ढूंढा। बाजार में घूमा, लोगों से पूछा, मस्जिद के मौलवी से बात की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मरियम मां के साथ रूठी। घर में सन्नाटा छा गया। फातिमा ने खाना छोड़ दिया। सिर्फ घर पर नमाज पढ़ती और कुरान के साथ वक्त गुजारती। तैमूर के कपड़े देखकर आंसू बहाती। शहर के गुलाम बाजार में तैमूर को नवाब अब्दुल ने खरीदा। नवाब अब्दुल शहर का सबसे अमीर, मजहबी और मेहरबान आदमी था। वो इस्लाम के उसूलों पर चलता, हर रोज मस्जिद जाता, गरीबों को सदका देता और कहता, गुलाम भी अल्लाह के बंदे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुलामों के साथ इंसाफ करो, उन्हें अच्छा खाना दो, अच्छा पहनाना दो, उन पर जुल्म न करो। नवाब के घर में उसकी बीवी बेगम आयशा थी, जो घर के काम संभलती, मेहमानों की खिदमत करती और थोड़ी सख्त मिजाज की थी। और उनकी एक बेटी अलीना, जो 10 साल की थी और अपने खिलौनों, नए कपड़ों और बाग में खेलने में खुश रहती। नवाब का महल शहर के बीच में था, बहुत बड़ा और शानदार, जिसमें मार्बल के फर्श, बड़े बड़े झरखों से शहर का नज़ारा और बाग थे जहां फूलों की महफिल थी। मोर नाचते थे और फव्वरे से पानी गिरता था। महल की दीवारों पर कुरान की आयतें नक्शी थीं और एक छोटी सी मस्जिद भी महल के अंदर थी। तैमूर को जब महल ले जाया गया, उसका दिल डर से कार रहा था। वो एक छोटे से गांव से आया था जहां मिट्टी का घर और नीम का पेड़ था। ये महल उसके लिए एक अलग दुनिया थी, जहां सितारे चमकते और महंगा सामान था। वो रोया, मुझे मां के पास जाना है, फैज भाई और मरियम बहन के पास, गांव में वापस। नवाब अब्दुल ने उसे अपने कमरे में बुलाया, एक मुलायम कुर्सी पर बिठाया और पानी का ग्लास दिया। नवाब ने कहा, बेटा, अब तू यहां का गुलाम है, लेकिन मैं तुझे अच्छा रखूंगा। काम कर, नमाज पढ़ और अल्लाह को याद रख। सब्र कर, अल्लाह तुझे रास्ता दिखाएगा, मुश्किल से निकालेगा। तैमूर के आंसू नहीं रुके। उसने कहा, मेरे अब्बू ने मुझे बेच दिया। मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूं, वो रो रही होंगी। नवाब ने उसके सर पर हाथ रखा, तसल्ली दी। अल्लाह सब देख रहा है, वो सब ठीक कर देगा। कुरान में फरमाया है, मुश्किल के साथ आसानी है। तू यहां रह, सीख और मेहनत कर। बेगम आयशा ने तैमूर को देखा और मुंह बनाया। ये लड़का सिर्फ काम करेगा, इससे अपना बेटा मत समझना, ये गुलाम है। अलीना ने तैमूर को घूरा और अपने खिलौनों से खेलते हुए कहा, गुलाम, मेरा पानी ला। तैमूर ने चुपचाप पानी का जुग उठाया, अलीना के कमरे में रखा जो फूलों से सजा हुआ था, और वापस किचन चला गया। महल में उसकी जिंदगी का नया दौर शुरू हुआ। सुबह अजान के साथ उठना,
किचन में बर्तन धोना, बाग के पौधों को पानी देना, फूलों की देखभाल करना और महल के फर्श साफ करना जिसमें मार्बल चमकता था। शाम को वो नवाब के साथ महल की मस्जिद जाता, जहां शहर के लोग नमाज पढ़ते और नवाब उसे कुरान सिखाता। ये आयत पढ़, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा। जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए रास्ता निकालता है। तैमूर के दिल को थोड़ी तसल्ली मिलती, लेकिन रात को जब वो बिस्तर पर लेता, माँ की याद में आंखें भर आती। उमर की सिखाते हुए आवाज याद आती, मरियम की कहानियां सुनने की ख्वाहिश होती। महल की जिंदगी स्ट्रिक्ट और नियमित थी। बेगम आयशा हर छोटी बात पर तैमूर को दाती, ये फर्श साफ नहीं है, दोबारा साफ कर गुलाम। अलीना अक्सर उसके साथ मजाक करती, उसका काम बढ़ती, जैसे अपने कमरे में खिलौने बिखेर कर कहती, इन्हें जमा कर। तैमूर चुप रहता, काम करता, दिल में दुआ करता, या अल्लाह मुझे सब्र दे, मां से मिला दे। नवाब ने तैमूर की मेहनत देखी, उसे पसंद किया। एक दिन नवाब ने उसे बुलाया, तैमूर, तू ईमानदार है, अब से मेरे हिसाब किताब में मदद कर, बाजार जा, सौदा सीख। तैमूर ने नवाब के साथ बाजार जाना शुरू किया, सौदा करता, लोगों से बात करता, पैसे गिनता। शहर के तजीर उसकी ईमानदारी की तारीफ करते, कहते, नवाब का गुलाम बहुत नेक और शरीफ है। जैसे वक्त गुजरा, तैमूर 12 साल का हुआ। अलीना भी उसी उम्र की थी, लेकिन उसका बर्ताव बदला नहीं। वो तैमूर को गुलाम कहकर चिढ़ाती, उसके काम में कमी निकालती। एक दिन बाग में अलीना अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी, फूल तोड़ती, हंस रही। उसने तैमूर को बुलाया, पानी का ग्लास ला। तैमूर जल्दी से ग्लास ले आया, लेकिन उसके हाथ से ग्लास गिर गया और टूट गया। अलीना ने गुस्से में थप्पड़ मारा, बेवकूफ गुलाम, तू कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ टूट फूर। तैमूर के गाल लाल हो गए। वो रोया, लेकिन कुछ नहीं कहा। वो मस्जिद में चला गया, वहां नमाज पढ़ी, सजदे में गिरा और दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे सब्र दे, ये जुल्म सहना सिखा दे। नवाब ने जब सुना, अलीना को बुलाया, समझाया, बेटा, इस्लाम में जुल्म नहीं किया जाता, गुलाम भी इंसान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों के साथ अच्छा सुलूक किया, उन्हें आजाद किया। अलीना ने मुंह बनाया, लेकिन वो गुलाम है अब्बू। नवाब ने कहा, इस्लाम में सब बराबर हैं, अमीर, गरीब, गुलाम, आजाद, सब अल्लाह के बंदे। अलीना चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा था। तैमूर की जिंदगी यूं ही चलने लगी। वो सुबह से शाम तक काम करता, नवाब के साथ बाजार जाता, रात को कुरान पढ़ता। नवाब ने उसे अरबी सिखाई, हिसाब किताब के नियम बताए और कहता, तू एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। तैमूर ने कुरान के कुछ सूर याद किए, हदीस सुनी। एक दिन नवाब ने उसे हजरत ज़ैद बिन हारिता रजी अल्लाहु अन्हु की कहानी सुनाई कि कैसे वो गुलाम थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपना बेटा बनाया और वो इस्लाम के लिए लड़ाई में शामिल हुए। तैमूर ने सोचा, मैं भी सब्र करूंगा, शायद अल्लाह मुझे आजादी दे, मां से मिला दे। जब तैमूर 15 साल का हुआ, नवाब ने उसे ज्यादा जिम्मेदारी दी। वो अब नवाब के कारोबार का हिसाब किताब संभलता, बाजार में सौदा करता, नए ताजिरों से मिलता और नवाब के लिए नए कारोबार सोचता। शहर के लोग उसकी तारीफ करते, कहते, ये गुलाम नहीं, नवाब का बेटा लगता है, उसकी ईमानदारी और मेहनत देखने लायक है। तैमूर हर काम में इस्लाम के उसूल लगाता। एक दिन एक ताजिर ने उसे कहा, तैमूर, तू इतना ईमानदार कैसे है? बाजार में तो धोखा चलता है। तैमूर ने जवाब दिया, मेरी मां ने सिखाया कि झूठ और धोखा गुनाह है, अल्लाह हिसाब लेगा। ताजिर शर्मिंदा हुआ, उसकी तारीफ की और नवाब को बताया, आपका गुलाम बहुत नेक है। अलीना, जो अब 15 साल की थी,
तैमूर से जलती थी। उसने सोचा कि तैमूर उसकी जगह ले रहा है, नवाब की मोहब्बत पा रहा है। वो उस पर जुल्म करती, कहती, गुलाम, मेरे जूतों को साफ कर और जल्दी कर। तैमूर चुपचाप काम करता, दिल में दुआ करता, या अल्लाह, इससे हिदायत दे, इसका दिल नराम कर। बेगम आयशा भी तैमूर को पसंद नहीं करती। कहती, ये लड़का हमारे घर के लिए फिट नहीं, सिर्फ काम करे। लेकिन नवाब तैमूर को अपना बेटा समझता। उसे कहता, तू मेरा हाथ है, मेरे बिजनेस को संभाल, तू बिना मैं अधूरा हूं। एक दिन अलीना ने साजिश रची। उसने नवाब के कमरे से कुछ पैसे छुपाए, अपने कमरे में रखे और बेगम आयशा से कहा, तैमूर ने चोरी की है, देखो उसके कपड़े में पैसे हैं। बेगम ने नवाब से शिकायत की, ये गुलाम चोर है, इससे निकालो। नवाब ने तहकीक की, हिसाब किताब देखा, लोगों से पूछा और पता चला कि अलीना ने झूठ बोला। नवाब ने अलीना को बुलाया, समझाया, झूठ बोलना गुनाह कबीरा है। कुरान में फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह व कूनू मास सादिकीन। ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। अलीना शर्मिंदा हुई, रोई, अब्बू, मैं जलान में थी। लेकिन उसका दिल पूरी तरह नहीं बदला। वो तैमूर से दूर रहने लगी। तैमूर रात को तहज्जुद के लिए उठता, मस्जिद के आंगन में बैठकर दुआ मांगता, या अल्लाह, मेरी मां को सुकून दे, फैज और मरियम को हिफाजत कर और मुझे आजादी दे। वो मां की याद में रोता, उनकी बातें याद करता कि कैसे वो उसे कुरान सिखाती थी, गले लगाती थी। एक दिन शहर में एक बड़ी महफिल मिलाद हुई, जहां उलेमा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर बात की, उनके सब्र और रहम की मिसालें दी। तैमूर वहां गया, नवाब के साथ बैठा और सुना कि कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों को आज़ाद किया, उन्हें बराबर का दर्जा दिया। उसने सोचा, मैं भी अपने ईमान पर कायम रहूंगा, जुल्म सहने से नहीं दारूंगा। अलीना का जुल्म कम नहीं हुआ। वो तैमूर के खाने में नमक डाल देती, उसके कपड़े छुपा देती और कहती, तू हमेशा गुलाम रहेगा, महल से बाहर निकल। तैमूर जवाब नहीं देता, सिर्फ काम करता। एक बार शहर में कहर आया, बारिश न होने से फसलें खराब हो गईं, लोग भूखे थे, बाजार में अनाज महंगा हो गया। नवाब ने तैमूर को बुलाया, बेटा, अनाज बांटो, गरीबों की मदद कर, मस्जिद से बांटो। तैमूर ने रात दिन मेहनत की, दूसरे शहरों से अनाज मंगवाया, मस्जिद में जमा किया और हर मोहल्ले में बांटा। गरीबों को कहता, ये अल्लाह की रहमत है, सदका दो, दुआ करो। लोग उसके लिए दुआ देते, कहते, ये लड़का फरिश्ता है, अल्लाह उस पर रहम करे। अलीना को यह सब पसंद नहीं था। वो जलती थी, सोचती, तैमूर क्यों इतनी तारीफ पा रहा है। लेकिन नवाब की वजह से चुप रही, अपने कमरे में बंद रहती। एक दिन नवाब बहुत बीमार हो गए, उनकी तबीयत दिन ब दिन गिरती गई। वो बिस्तर पर पड़ गए और तैमूर ने उनकी सेवा की, दवाई लाया, रात भर जागा, कुरान पढ़कर सुनाता। नवाब ने मौत से पहले तैमूर को बुलाया, बेटा, मैं तुझे आजाद कर रहा हूं, मेरी वसीयत है कि तू मेरा घर संभले, कारोबार चलाए, अलीना की देखभाल करे, उसकी शादी करवा। तैमूर रोया, आपने मुझे जिंदगी दी, इस्लाम सिखाया, सब्र सिखाया। नवाब ने आंखें बंद की, दुआ मांगी और गुजर गए। तैमूर ने उनका जनाजा पढ़ाया, मस्जिद में दुआ की, शहर वाले आए, नवाब की तारीफ की। बेगम आयशा और अलीना ने तैमूर को निकालने की कोशिश की, तू गुलाम था, अब जा। लेकिन नवाब की वसीयत ने उन्हें रोक दिया। वो कहती, ठीक है, लेकिन हमारे काम ना कर। तैमूर अब आजाद था, लेकिन महल में रहा, कारोबार चलाया और घर संभाला, गरीबों की मदद जारी रखी।
एक दिन तैमूर बाजार में गया। वहां एक बूढ़ी औरत भीख मांग रही थी। उसने देखा और उसका दिल धड़का। ये फातिमा थी। फातिमा गांव छोड़कर बेटे को ढूंढने शहर आई थी। दिन भर भीख मांगती, लोगों से पूछती। तैमूर ने आवाज दी, अम्मी। फातिमा ने उसे देखा, चीख उठी, तैमूर, मेरा बेटा। दोनों गले मिले, बहुत रोए। बाजार के लोग देखते रहे। तैमूर ने सब बताया, अहमद का धोखा, गुलामी का दर्द, नवाब की मेहरबानी, आजादी का पाना। अलीना जो पहले जलन से भरी थी, अब तैमूर की बहन जैसी बन गई। उसे कारोबार की बारीकियां सीखती और कहती, भाई, तुम्हारी वजह से मैंने जुल्म का मतलब समझा। अब नेकी का रास्ता अपनाऊंगी। ये कहानी सब्र, ईमान, माफी और मोहब्बत की मिसाल है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, अगली मजेदार और हिदायत से भरी कहानी में फिर से मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।